Okay, so a very good morning, all of you. Yesterday, we have started our new topic, that is joint stock company. We have discussed its meaning, features, and merits, right? What is a joint stock company? Have a look. It is an artificial person having separate legal existence, perpetual succession, and a common seal. We have discussed that there are four important things. Number one, it is an artificial person. Number two, it is having separate legal existence. It means it can buy and sell properties with its own name. Number three, it is continuing business. It is having a perpetual succession, means its existence does not get affected due to death of the members. And number four, as it can't sign on its own name, it needs a common seal, which will be put it on all the documents of a joint stock company. Right? ये हमने complete कर लिया था. Then after we have discussed the features, four features are covered in definition itself. Registration of joint stock company is 100% compulsory under the Companies Act 2013. बिल्कुल compulsory है, बिना registration के काम नहीं हो सकता. And we have discussed that there is separation in ownership and control. Shareholders are the owners, whereas control lies in the hands of directors. We have discussed that liability is limited and shares can be easily transferred. In case anyone is having any doubt in any part, you can ask me. Merits, we haven't read it from book in yesterday's class, but I have explained you all the points. Liability will be limited only up to the extent of capital contribution. Interest can easily be transferred. Whenever I want to transfer my share to any person, I can easily do that. The company will continue. It is having a perpetual existence. It can grow and expand easily because it is having more funds. Management will be efficient because it will be managed by professional experts, because it is having sufficient fund to hire professional experts, right? तो बहुत अच्छे से management होगा और पैसा बहुत अच्छे से arrange हो पाएगा, large amount of capital. Okay, अब किसी को लगता है कि कोई point ऐसा है merits का जो book से पढ़ने पे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बता दीजिए, I will be explaining it. किसी बच्चे को लग रहा है कि yesterday when we have gone through the merits, तो कोई पॉइंट ऐसा है जो रह गया है? नहीं. चलिए डीमेरिट्स की बात करते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसके जितने ज्यादा फायदे उतने ज्यादा नुकसान. मोबाइल के जितने प्रोज है उतने ही कॉन्स भी हैं, जितने ज्यादा फायदे हैं उतने ही ज्यादा नुकसान भी है ना? तो क्या क्या नुकसान है ये देखते हैं. डीमेरिट्स क्या क्या है ये देखते हैं. डीमेरिट नंबर वन, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. स्टार्टिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट अ इजी टास्क. आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी. अभी तक हमने सारे बिजनेसेस में यही पढ़ा है, स्टार्टिंग इज क्वाइट इजी, राइट? हमने यही पढ़ा है, बहुत इजीली यू कैन स्टार्ट दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट द सेम. यहाँ पे व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस तो आप आगे पढ़ेंगे कितना लेंदी प्रोसीजर होता है. तो देखिए व्हाट इज रिटन हियर फॉर यू. The formation of company involves lengthy and complicated procedure. Procedure lengthy भी है और lengthy होने के साथ complicated भी है. कुछ कुछ आंसर्स होते हैं ना, बड़े होते हैं बट इजी होते हैं, हम इजीली लर्न कर पाते हैं. लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो लेंदी भी होते हैं और टफ भी होते हैं. तो कंपनी का प्रोसीजर भी, फॉर्मेशन प्रोसीजर लेंदी भी है और मुश्किल भी है. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. मेनी लीगल. अच्छा, टॉपिक ध्यान से पढ़ना, मैंने आपके लिए प्रैक्टिस एक्टिविटी प्रिपेयर करके रखी है. जैसे ही क्लास ओवर होगी मैं आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक्टिविटी सेंड करूंगी जो सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड होगी. द क्वेश्चंस विल कवर ओनली द टॉपिक मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो बहुत अच्छे से आप 10 फिलअप्स का आंसर दे पाएंगे, राइट? आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये. Many legal formalities have to be completed, many documents have to be prepared and submitted. कंपनी शुरू करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं और उनको सबमिट करना पड़ता है, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है. और इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट लोगों को हायर किया जाता है. हर इंडिविजुअल इन एक्टिविटीज को नहीं परफॉर्म कर सकता और ये जो एक्सपर्ट होता है ये हाई फीस चार्ज करता है. इवन रजिस्ट्रेशन फी भी पे करनी पड़ती है जब हमें रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है. तो इट मींस फॉर्मिंग अ कंपनी इज नॉट अ इजी टास्क. आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है. नंबर टू, लैक ऑफ सीक्रेसी. अगेन दे हैव रिटन 1956, यू विल बी राइटिंग 2013.
कल मैंने मेंशन किया था ना, नया एक्ट कौन सा लग रहा है, 2013 लग रहा है. सो हैव अ लुक. As per the Companies Act 2013, the company is required to provide a lot of information to the Office of Registrar of Companies. जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको रजिस्ट्रार को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी यानी आपकी बातें सीक्रेट नहीं रहेगी. प्लस ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जनरल पब्लिक को भी बतानी है. अगर आप गूगल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट सर्च करना चाहेंगे, आपको मिल जाएगी. जो भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, अगर आप उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स सर्च आउट करना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी के लिए ये कंपल्सरी होता है कि उसको अपने अकाउंट्स लोगों को बताने. क्या किसी को इसके पीछे कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों कंपनी को अपनी सारी बातें जनरल पब्लिक को बतानी पड़ती है, सोल ट्रेडर को तो नहीं बतानी, पार्टनर को भी नहीं बतानी? वेरी गुड, युगांश विल गिव द आंसर. यस बेटा. पंकज इज आल्सो रेडी. मैम कंपनीज में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो सबका पैसा लगा हुआ होता है, तो सबको रिपोर्ट्स जाननी होती है. बिल्कुल, वेरी गुड. कंपनी पैसा किसका ले रही है? लोगों का ही तो ले रही है. तो अगर मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे पैसा दे, तो डेफिनेटली आई विल हैव टू शेयर माय सीक्रेट्स विद यू. तो जब तक मैं सीक्रेट शेयर नहीं करूंगी तब तक आप मुझे अमाउंट नहीं देंगे. तो लैक ऑफ सीक्रेसी इज देयर. इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं. इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो पर्सनल नहीं. हमने सोल ट्रेडर का एक बेनिफिट पढ़ा था, डायरेक्ट इंसेंटिव. एफर्ट और रिवॉर्ड में डायरेक्ट रिलेशन था, तो सोल ट्रेडर हमेशा मोटिवेटेड रहता है ज्यादा वर्क करने के लिए. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग लोगों के हाथ में. चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो क्या मिलना है? सैलरी मिलनी है. ऐसे केस में उसको मोटिवेशन नहीं मिलता एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए. तो देखिए ध्यान से, कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ओनर्स बट इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स. These managers get salary for their services and there is no direct relationship between efforts and reward. ये कह रहे हैं मैनेजर्स को तो सैलरी मिलेगी, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो भी इनको सैलरी मिलेगी, और कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो भी इनको सैलरी मिलेगी. अब आप सोचिए, अगर आप 90% एफर्ट डालते हो तो भी आपको 50,000 रुपीज मिल जाएंगे, और अगर आप 70% एफर्ट्स डालते हो तो भी आपको 50,000 मिल जाएंगे. क्या ऐसे में आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप 100% एफर्ट डालो? डेफिनेटली 50% लोगों को नहीं मिलेगा. बहुत सारे लोगों को मिलेगा. जो समझदार होंगे उनको पता है कि अगर हमने अच्छे से काम किया तो अल्टीमेटली हमारा फायदा होगा. बट काफी लोगों को नहीं भी पता होता. तो ऐसे में कंपनी की प्रॉफिट अगर मैनेजर की इनकम नहीं इंक्रीज करेंगे तो मैनेजर को मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए. अब ये प्रॉब्लम है ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. सुना है ना आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है. तो वैसे ही ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन है कि मैनेजर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे दिया जाए ताकि उनको मोटिवेशन मिले टू इंक्रीज द प्रॉफिट. पर अभी तो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो लिमिटेशन में तो वी हैव टू टेल अस की प्रॉब्लम क्या है. नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरियस रेगुलेशन. बहुत सारी रेगुलेशंस होती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है. अगर कोई भी स्टेज पे कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी करना रह गए तो पेनल्टी लगेगी, फाइन लग जाता है कंपनी पे. एक दिन भी डिले हो गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में या एनुअल रिपोर्ट देने में, तो ऐसे में लीगल एक्शन लिया जा सकता है आपके ऊपर. तो ये कह रहे हैं कंपनी में रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है और उनको फुलफिल करने के लिए बहुत टाइम और मनी जो है वो कंपनी को स्पेंड करना पड़ता है. आगे देखिए, इसको रीड कर देती हूँ आपके लिए, पॉइंट नंबर 4 को. The company form of business has to comply यानी fulfill with various legal formalities at different stages. अलग अलग स्टेज पे अलग अलग formalities है. And there is penalty if the company fails to meet any of the formality. कोई भी formality अगर छूट जाती है तो उस पे penalty लगेगा यानी फाइन लगेगा. A company has to file return and annual reports with the registrar. रिटर्न भी लगाना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को अपनी एनुअल अकाउंट्स भी शो करने पड़ेंगे. This legal interference in day-to-day operations result in lack of secrecy and a lot of time and money spent. Is it clear to everyone? जितना फायदा उतना ही नुकसान. आगे देखिए, delay in decision. सोल ट्रेडर में
और पार्टनरशिप में जैसे डिसीजंस क्विकली हो जाते थे वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे व्हेन यू वांट टू टेक एनी डिसीजन यू हैव टू कंसल्ट अ लॉट ऑफ पीपल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेना है तो पहले मीटिंग रखनी पड़ेगी, मीटिंग में बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा, काफी बार तो ऐसा होता है लोग नहीं आए तो मीटिंग भी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में डिसीजंस लेना काफी टाइम कंज्यूमिंग है। सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन। In company organization, all important decisions are taken in the board meeting after consulting various persons. Board of directors की मीटिंग होती है, आपकी हायर स्टडीज में ये भी आएगा कि मीटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो आगे once decisions are taken, these have to be communicated to everyone, which is again a lengthy process. As a large number of people are working in a company at different levels. So taking and implementing decisions is a lengthy process. क्या कह रहे हैं, डिसीजन लेना और डिसीजन को इंप्लीमेंट करना बहुत लेंदी है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट देखिए, ओलिगार्किक मैनेजमेंट। क्या मीनिंग होता है इसका, न्यू वर्ड है आपके लिए। इसका मतलब है, कहने के तो हमें लगता है डेमोग्राफिक सेटअप है, वन मैन वन वोट, लेकिन एक्चुअली कुछ ही लोगों के हाथ में कंट्रोल होता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कंट्रोल ऑफ फ्यू पीपल, जब कुछ ही लोगों के हाथ में कंट्रोल होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं although we say that there is a democratic setup in the company form of business, but this democratic setup exists only on paper। यानी पेपर्स पे ही ऐसा है कि कंपनी में सभी लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। आगे, in real practice company is in the hands and controls of few people that are the directors। actually तो कंपनी किसके हाथों में है, डायरेक्टर्स के हाथों में। the directors have complete control over the company। these people take all the decisions keeping in mind their personal interest and benefit, ignoring the interest of shareholders and the company। ये कह रहे हैं काफी बार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपनी बेनिफिट के लिए डिसीजन लेते हैं जो इनको फायदेमंद हो, जिससे इनका फायदा हो, और शेयर होल्डर्स को और अदर मेंबर्स को भूल ही जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। ये सारा का सारा फोकस किस पे करते हैं, अपनी नीड्स पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मीनिंग सबको समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं कि कुछ हाथों में मैनेजमेंट है, सभी लोग मिलके मैनेजमेंट रियल प्रैक्टिस में नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। यहाँ पे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यानी सब अलग अलग चीज चाहते हैं। आप देखिए कंपनी में कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, शेयर होल्डर जो कंपनी का शेयर परचेज करेगा, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर भी एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जिसमें लोगों से पैसा कंपनी बोरो कर सकती है, और जो पर्सन कंपनी का डिबेंचर परचेज करता है उसे डिबेंचर होल्डर कहते हैं। आपके इस बुक के चैप्टर नंबर 7 में शेयर्स और डिबेंचर्स को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी के माइंड में कंफ्यूजन रहे तो ये मत सोचना कि ये तो हमें डिटेल में बताया ही। वी विल डिस्कस अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन चैप्टर नंबर 7। नाउ एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, ये अलग अलग लोग हैं, हर ग्रुप का अपना गोल है। जैसे डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट मिले, लेकिन शेयर होल्डर चाहते हैं डिबेंचर होल्डर को कम इंटरेस्ट मिले ताकि शेयर होल्डर को ज्यादा इनकम मिल सके। तो ये कह रहे हैं सबके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो सॉरी सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, तो ऐसे में हो सकता है लोगों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लड़ाई झगड़े। एम्प्लॉय चाहता है ज्यादा सैलरी मिले और शेयर होल्डर चाहता है ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो ऐसे में हो सकता है काफी बार एम्प्लॉयज का और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट साथ में मैच ना हो पाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने 7 लिमिटेशंस पढ़ ली है, रिपीट कर लीजिए कौन कौन सी है। दो तो आपको बहुत इजीली याद रहेंगी, बहुत ही आराम से। एक तो फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है और एक रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, ये दोनों आपस में रिलेटेड। इसके अलावा सीक्रेसी नहीं रहती, सबको सब कुछ बताना पड़ेगा। डिसीजन टाइम पे नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमें डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना है। Then working environment is impersonal because owners and managers are different people. Oligarchic management, it means management lies in few hands and conflicts in interest. Different groups have different opinions and different benefits. Is it okay to everyone? Are you all done with the meaning, features, merits and demerits of joint stock company? आगे start कर सकते हैं?
Yes, I am giving you unmuting rights. You can unmute and speak if you want to ask something. Yes, Pankaj, you can speak. Are you having any question? No? Okay, Yugansh want to ask something or you have raised your hand for the next topic? मैम पूछना है मैम, कंपनी को एनसीएलटी की अप्रूवल क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट लोगों से लेगी तो उसके लिए उसको ये प्रूव करना है कि वो एक सोशल वेलफेयर तो नहीं कह सकते, वो लोगों के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं करी, वो लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए काम करी। ओके मैम, तो मैम ये डिसएडवांटेज होगी ना कंपनी की? हाँ, ये यहाँ पे आ जाएगी न्यूमेरियस रेगुलेशन वाला जो आपने पॉइंट पढ़ा था, सेबी ओके अप्रूवल लेना पड़ेगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। ओके, देखिए कंक्लूजन में क्या कहा हुआ है। On comparing the merits and demerits of company form of business, we can conclude that it is suitable for heavy and basic industries। बहुत बड़े लेवल पे काम करना है तो ही सुटेबल, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा और पैसा भी ज्यादा। चलिए अब कुछ फॉर्म ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं। एक कंसेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, हम प्राइवेट सेक्टर बिजनेस की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ये मीनिंग नहीं है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है वो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। अभी देखिए, कंपनी 3 टाइप्स की है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड वन पर्सन कंपनी। हैव अ लुक एवरीवन। Private limited company as per section 268 of Companies Act 2013, यानी कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, उसके सेक्शन नंबर 2 के 68 नंबर पार्ट में ये बताया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी मींस, यानी यहाँ पे थोड़ी लीगल लैंग्वेज आएगी, कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, कंपनी जो अपने आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स क्या होता है आगे पढ़ेंगे, restricts the right of transfer its share, यानी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को उतना इजीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नंबर 2 has minimum 2 and maximum 200 members excluding the present and past employees, जिसमें मेंबर्स कम से कम कितने होने चाहिए, 2, और हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, 200, ना तो 2 से कम और ना 200 से ज्यादा। Number 3 prohibits any invitation to public to subscribe for any security of the company, यानी ये कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है शेयर्स परचेज करने। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि आप आइए और कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कीजिए। यानी a private company is the company which do not take money from general public। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा पैसा आता कहां से, we will discuss it in our later part। right now you have to learn 3 points। point number 1, shares are not freely transferable in private company। number 2, minimum 2 members and maximum 200 members can work in a private company। and number 3, private company do not invite general public to purchase its share। सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटी का मतलब है कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स को परचेज करना, उनको सब्सक्राइब करना। यस पंकज, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। What is the difference between transfer of shares and selling of shares? Transfer of look, selling of shares means company is selling the shares to us, company is selling the shares and we can purchase it। Transfer of shares means I as an individual investor am selling the share to any other shareholder। I am selling the share to any person, that means I am transferring my share to your name। if I am selling my share to you, then it means I am transferring my share to you। so if investors are just transferring their shares, it will be treated as transfer of share, they are selling the securities, right? and when company is selling the securities to general public and asking them to invest, it will be simply treated as selling of securities। is it okay? कंपनी ने पहली बार सेल किया है, आपको परचेज करने Yes, के ma'am. लिए कहा है,
लोगों को, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेलिंग ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। और अगर आप लोगों ने खरीद रखे हैं, अब आपको जरूरत नहीं है, आप उसको वापस मार्केट में लेके आते हैं, तो इसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। नंबर 1, ये शेयर ट्रांसफर करना अलाउ नहीं करती। नंबर 2, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। नंबर 3, आप सबको याद हो गया होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि आप शेयर्स को परचेज कीजिए। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रखा है, तो देखिए जल्दी क्या होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेट्स हैव अ लुक। क्या लिख दिया आपके लिए, देखिए कंफ्यूजन आएगा। अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो ये तो हमें पता ही है, प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक है। कौन सी होती है, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नंबर 1, minimum 7 members and maximum no limit. You have to learn this part. Private में minimum 2 members and maximum 200. Public में minimum 7 and maximum there is no limit. Number 2, प्राइवेट में शेयर्स को ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है, बट पब्लिक में शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं अपना शेयर किसी को भी सेल आउट कर सकती हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। नंबर 3, not prohibited to invite general public to subscribe to its security। यानी जनरल पब्लिक इसकी सिक्योरिटीज को परचेज कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं। यानी एक नॉर्मल कंपनी जो लोगों को उसके शेयर्स खरीदने के लिए परमिशन देती है, वो एक पब्लिक कंपनी है जिसमें मिनिमम मेंबर्स 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। लर्न कीजिए इसको जल्दी से। ट्राई टू लर्न द पार्ट। 3 पॉइंट्स आई होप आप सबको आ गए होंगे, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखिए। However, a private company which is the subsidiary of public company is also treated as public company। अब सब कुछ नई नई चीजें आ रही है भाई आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा चैलेंज इंक्रीज हो गया है, राइट? थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। सोल ट्रेड तक सब कुछ इजी इजी आ रहा था, सारी चीजें हमें पढ़ते से ही समझ आ रही थी। यहाँ हल्के फुल्के नए वर्ड्स आए हैं आपके लिए। तो सब्सिडियरी क्या होता है? जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है और उसको अपने अंडर में काम करवाना शुरू कर देती है, तो जो परचेजर कंपनी होती है उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसको परचेज किया जाता है उसको हम कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। डिटेल में हायर स्टडीज में पढ़ोगे, क्लास 11th में नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ इतना समझिए कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी ने होल्ड आउट कर लिया, तो वो प्राइवेट कंपनी भी कैसी मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। पहले यहां तक ट्राई टू लर्न द पार्ट्स। डिफरेंस क्या क्या है वो याद कीजिए। जल्दी से कोशिश कीजिए। आगे देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सभी मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है? जितनी उन्होंने कंपनी के लिए गारंटी दी है। यानी कंपनी ने, इसको अच्छे से रीड करते हैं फिर आपको समझ आएगा। Company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by memorandum। नया वर्ड आया आपके लिए, memorandum। To such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। आपको लगा होगा ये क्या आ गया, ये तो हमें इसमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सुनिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी? जितना उन्होंने पहले बता दिया कि कंपनी बंद होगी तो हम कंपनी के लिए इतना अमाउंट दे सकते हैं।
कंपनी बंद होगी तो जिसका क्लेम बाकी होगा उस क्लेम को कवर अप करने के लिए हम इतना अमाउंट देंगे। यानी मैंने गारंटी दे दी कि ये कंपनी कम से कम 40,000 रुपीज 1 डे में अर्न करेगी। तो पर डे अगर वो 40,000 अर्न नहीं करती तो मेरी लायबिलिटी है कि मैं उसको 40,000 तक पहुंचाऊं। 28 तक का हुआ तो मुझे एक्स्ट्रा 12 करके उसको क्या बनाना पड़ेगा, 40 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तो देखिए सिंपल सा ये याद रखना है। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप आगे पढ़ोगे। तो मेमोरेंडम से मेंबर्स की लाइबिलिटी डिसाइड हो रही है और कितनी होगी, टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे रेस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट। उस अमाउंट तक जिस तक मेंबर्स ने खुद कहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे। कब, जब कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपनी के बंद होने के टाइम मेंबर्स किस अमाउंट तक कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी। यानी आई हैव गिवन अ गारंटी टू कंट्रीब्यूट अप टू रुपीज 4 लाख, तो मेरी लायबिलिटी 4 लाख की रहेगी। ठीक है, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एक जनरल कंपनी होती है जैसे कि रिलायंस कंपनी है, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, जितना उन्होंने शेयर्स खरीद रखा है। अब यहाँ पे भी वर्ड सारे नए हैं, मेक श्योर बेटा ये थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उतना इजी नहीं है जितना यहाँ तक चल रहा था। काफी न्यू चीजें आएगी, आपको बहुत कुछ नया समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपको क्या बात कह रहे हैं, है इजी, बस लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, न्यू है आपके लिए, टफ नहीं है, बस न्यू है। सो हैव अ लुक एवरीवन, क्या बात कर रहे हैं ये यहाँ पे। Company limited by shares means a company having liability of its members limited by the memorandum। liability हमेशा memorandum में बताई गई होती है, तो यहाँ भी गारंटी वाले में भी memorandum और यहाँ भी memorandum। to the amount, किस amount तक, if any unpaid on the shares respectively held by them। अगर उन्होंने कोई शेयर परचेज किया और उस शेयर पे उन्होंने कोई अमाउंट अभी तक कंपनी को पे नहीं की है तो उतनी लायबिलिटी उसकी रहेगी। अच्छे से समझिए, अगर कंपनी का एक 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी कभी भी 100 रुपीज आपसे एक साथ नहीं मांगती। कंपनी इस शेयर के पार्ट कर देगी, 4 पार्ट्स में आपसे अमाउंट मांगेगी, 25 हो सकता है, नेक्स्ट पार्ट 40 और 10 का रखती है। कंपनी के ऊपर है, ये 4 पार्ट्स करती है, पार्ट्स में मांगती है, ये सारी चीजें आप 12th की अकाउंट्स में प्रैक्टिकली करेंगे। आप एंट्रीज करेंगे कब कंपनी लोगों से पैसा लेती है, कैसे क्या करती है। अभी तो सिर्फ हमारा कंसेप्ट इतना सा है कि अगर बाय चांस किसी मेंबर ने, किसी शेयर होल्डर ने 50 रुपीज पे कर रखे, अब कंपनी को लॉस हो गया तो इसकी लायबिलिटी है ये रिमेनिंग 50 रुपीज कंपनी को पे करना। अगर इसने 90 पे कर रखे हैं और अब लॉस हो जाता है तो इसकी लायबिलिटी है कि 10 रुपीज और ये कंपनी को पे करेगा। लॉस के टाइम पे कंपनी इससे अनपेड अमाउंट मांग सकती है कि अभी तक हमने आपसे 10 रुपीज नहीं मांगे, अब आप हमें वो अमाउंट दे दीजिए जो आपने अभी तक शेयर्स पे नहीं दिए। इज इट ओके टू एवरीवन? अच्छे से इसको रीड करके देखिएगा, हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो अभी भी नहीं समझ में आए। आप अंडरलाइन करके रखिए, जिन भी वर्ड्स में कंफ्यूजन रहे वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी देखिए आगे का पार्ट क्या कह रहे हैं आपको। सब्सिडियरी कंपनी के बारे में बता दिया, क्योंकि हमें नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, बहुत शॉर्ट में आपको बताया, डिटेल नहीं बताई गई। अ कंपनी इज सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी if other company controls composition of its board of directors or if other company holds more than 50% of its equity share capital। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स परचेज कर लेती है, आप सोचिए मोर देन 50% शेयर मेरे पास है, इट मींस मैं आपके ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ, तो आपकी कंपनी मेरी सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी और मेरी कंपनी रहेगी होल्डिंग कंपनी। मेरा आपके ऊपर होल्ड है, मैं आपको कंट्रोल कर रही हूँ। या फिर अगर मैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गई किसी भी रीजन से, तो आप बन जाओगे मेरी सब्सिडियरी कंपनी एंड आई विल बी ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी। ठीक है, फिर देखिए promoters can decide the minimum paid up share capital in case of private and public companies as it has not been prescribed। ये कह रहे हैं मिनिमम शेयर पे कितना पैसा आपको लोगों से लेना है ये कंपनी के प्रमोटर डिसाइड करते हैं। प्रमोटर कौन होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने प्रमोटर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट डिस्कस
नहीं किया है। चलिए, तो अभी तक की आज की क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि हमने बहुत कम कंटेंट पढ़ा, बट जो पढ़ा वो सारा न्यू पढ़ा। ये जो टाइप्स ऑफ कंपनी वाला पोर्शन है, इसको आपको कम से कम डबल रीडिंग देनी पड़ेगी। 2 टाइम रीड करेंगे तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी, राइट? फिर भी आपको कंफ्यूजन रहे तो आप अपने वर्ड्स को, अपने डाउट्स को अंडरलाइन करके रखें, या तो कल क्लास में पूछें या फिर क्लास के बाद कभी भी मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछें। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। नाम से पता चल रहा है कि एक ही कंपनी, एक ही पर्सन है ना? पर एक पर्सन कैसे काम कर सकता है? तो मेंबर एक है, मेंबर के अलावा और बहुत सारे लोग हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, एनीवन डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो? ऑल राइट देन। सो आई एम टेकिंग फ्यू नेम्स जिन बच्चों की तरफ से अभी तक मेरे पास एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। आयुष, गजेश, कृष्णा भारद्वाज, कुणाल, देन मिहिर यादव, आई गेस राघव अग्रवाल ऑल्सो, वरुण बजाज, यश मोदी। अगर किसी का नाम गलती से ले लिया हो तो कोई बात नहीं, अगर आप रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं वेल एंड गुड। बाकी ये जो नेम मैंने लिए हैं, ये बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो बेटा व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको रिस्पॉन्सेस सेंड करने। गलत होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लिए जो आज की प्रैक्टिस टास्क एक्टिविटी है, उसमें यू आई हैव गिवन यू 10 फिलअप्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उनके आंसर्स नोट डाउन करने हैं। गजल बेटा बताइए कितनी देर लगती है जब आप उन फिलअप्स को करने बैठते हैं? तो Yes, 10 to 15 minutes. 10 to 15 मिनट्स। युगांश, कितना टाइम लगता है बेटा आपको? Hardly 6 minutes. 10 to 15 minutes. ओके, लक्ष्य? 5 to 10 minutes. 5 to 10 मिनट्स, इतना ही लगता है ना सबको? हार्डली हाईएस्ट। शुभांगी, कितना हाईएस्ट टाइम लगता है बेटा? 15 minutes. 15 मिनट्स हाईएस्ट है, राइट जानवी? Yes, ma'am. और प्रवीण बेटा, डेली होमवर्क करने में कितना टाइम लगता है? प्रवीण, यस प्रवीण, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए, प्रवीण अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। आई मस्ट इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले होमवर्क मेरे पास प्रवीण का आता है। क्लास एंड होने के थोड़ी ही देर में वो सारे नोट्स मुझे फॉरवर्ड कर देता है। तो बेटा आप सब अपने क्लास के बाद 15 मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए। आप देखिए, स्कूल में हमारी 1 आवर की क्लास होती थी, यहाँ पे हमारी 40 मिनट्स की क्लास है। तो 40 मिनट्स की क्लास प्लस 15 मिनट्स ऐड कर लीजिए, तो या आपको 1 आवर ही तो देना है, तो 1 आवर तो आपको सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। ओके एवरीवन, आई होप आज आप सबकी साइड से रिस्पॉन्सेज आएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्रैक्टिस टास्क एक्टिविटी। अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, रीडिंग करने के बाद में उसको ट्राई कीजिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स, फीचर्स और डीमेरिट्स और मीनिंग, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ डीमेरिट्स तक अच्छे से पढ़िए, और यहाँ तक आपको जो भी कंफ्यूजन हो वो आप पहले पूछिए, फिर उस एक्टिविटी को परफॉर्म। आप रात को 10 बजे तक भी आंसर्स भेजेंगे तो भी चलेगा, बस आंसर जरूर फॉरवर्ड कीजिए। इज इट ओके टू एवरीवन? ओके, ऑल राइट। Yes, ma'am. हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, मिलते हैं कल।